Hello friends, welcome back and just came back from the sport complex and अब हम करने वाले हैं अपना काम जो करना है बिकॉज बहुत देर से हमने हम मज़े कर रहे थे। अब हम पढ़ाई करेंगे एंड आज मुझे कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने हैं। आई हैव टू कवर 4 टॉपिक्स दिस वीक। बेसिकली 4 टॉपिक मुझे करना है, जिसमें पहला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड दी सेकेंड टॉपिक इज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंपॉर्टेंस टू कनेक्ट विद द इंडो पैसिफिक। ये वाला टॉपिक करना है। And recently we have seen an attack which has been happened on cyber, AIMS basically. AIMS पर एक अटैक हुआ था, a cyber attack kind of a thing. So उसको भी कवर करना है। And the last thing is the centrally backed digital currency, जो भी गवर्नमेंट ने e-rupee लॉन्च किया था, उसको भी हमें पढ़ना है। सो ये 4 टॉपिक मुझे कवर करने हैं फॉर माई पॉडकास्ट। उसके लिए भी बहुत सारा रिसर्च करना है, सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So yeah, this is how why I like my job, because in my job I have to do the things which I have to prepare for civil services only. So ये कहीं ना कहीं मुझे help ही करता है, इसलिए चलो start करते हैं। Then with the first topic, and I have covered all the things which are there, and this is how I make my notes. As you can see, in one sheet of paper I have made the entire notes. I have tried to cover every aspect of it, and also you can see I have used 2-3 pens, red pen or blue pen or black pen, and I also highlight the keywords which are there, which I'm going to use in my answers. So this is how I make notes. और फिर ये जाएगा, ये जो पेपर है it's going to go in my ring file. ये मेरी ring file में जाएगा, और so that I can revise it multiple times. इसको फेंकना नहीं है, इसको रिवाइज करना है बार बार, तब ये चीज़ दिमाग में बैठ जाता है for a longer time. And then when we write answers ना, so ये बहुत जल्दी दिमाग में क्लिक करता है। सो मैंने ये मेथड 1-2 साल पहले सीखा था, और आई हैव रियलाइज कि ये बहुत हेल्पफुल है वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर। सो इट काइंड ऑफ हेल्प मी टू ब्रिंग गुड पॉइंट्स, टू कम अप विद गुड पॉइंट्स वेन एवर आई एम राइटिंग। Yeah, so friends, welcome back, and now I have recorded my podcast, and now I'm going to show you which topics we have covered. मैं वो भी उन्हें तुम्हें highlight करूँगा बहुत brief में, so that you can also get some insights about this. So the first topic था, which is I think really important, was food security. And we know, in India, especially after the COVID-19, we have seen कि काफ़ी ज़्यादा कंट्री में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गया, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव पुश्ड इनटू द पॉवर्टी लाइन. सो द थिंग इज, let's discuss food security very comprehensively. So what is food security? अगर हम food security की बात करें तो we know कि food security का मतलब होता है when there is physical as well as economic availability of the food. It simply means कि there is availability, accessibility and also affordability of the food to majority of the population. Then definitely we can ensure food security. अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, so we all know when India got independence, we were at a very severe situation. We know that ki in India almost more than 50% people were below the poverty line, and there was lack of food in our country at the time. So in 1960s, government launched its green revolution, which has immensely increased our grain and also food production. Basically grains पे ज़्यादा focus था. उसके अलावा जब ये हुआ, but there were other problems which emerged after the green revolution, such as we all know the green revolution का ज़्यादा focus राइस और व्हीट पर था, जिसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो गया, बिकॉज फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा. देयर वर HYV सीड्स विच वर यूज. सो ये सब प्रॉब्लम था. उसके अलावा सॉइल का फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगा, बिकॉज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ऑफ राइस एंड व्हीट. एंड अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एंड COVID-19 इज ऑल्सो काइंड ऑफ पुटिंग अ थ्रेट ऑन दी food security of the country. So this is the issue. But क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़रा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा बात करना. वी ऑल नो कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड स्पेशली इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, एंड हम सभी को पता है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट देयर आर लॉट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विच आर इमर्जिंग इन आवर कंट्री, सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड ऑल्सो हीट वेव्स. आई पर्सनली लिव इन दिल्ली, और मैंने देखा है कि कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है ड्यूरिंग द समर सीजन.
सो इसकी वजह से जो हमारा एग्री यील्ड्स था और वो कम हुआ है, एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन क्वालिटी भी कम हुआ है हमारी कंट्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब किसी स्टेट में फ्लड्स होता है या डिजास्टर आता है, उसकी वजह से जो वहाँ पॉपुलेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेस्ट अटैक एंड वीड अटैक्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। लोकस्ट अटैक जो हुआ था हमारे कंट्री में बहुत फेमस न्यूज़ में था। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉल आर्मी वॉर्म अटैक भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। Apart from that, we are living in a globalized world and we always talk about free markets, we talk about this open market economy. So उसकी वजह से जो volatility है of the agriculture products वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि लीड कर रहा है to the food insecurity. एंड कोविड-19 के बारे में तो हम सभी को पता है, देयर वर सेवरल डेटास की मिलियंस ऑफ पीपल्स वर दे पुश्ड इनटू द पॉवर्टी एंड दे वर नॉट एबल टू एक्सेस द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. सो अब इंपॉर्टेंट चीज आता है, होना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग विच आई हैव लर्न एंड मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा इज गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज द फार्मर्स सो दैट दे कैन ग्रो क्लाइमेट इन resilient crops which can be help us to tackle the climate change, such as मिलेट्स के बारे में बहुत बात हो रहा है आजकल. वी नो जिनको मिलेट्स नहीं पता, आई थिंक आपको मिलेट्स आर दी रफ ग्रेन्स सच एज बाजरा, रागी, ऑल दीज आर मिलेट्स एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं टू टैकल द फूड इनसिक्योरिटी. मिलेट्स का हम सभी को पता है कि दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज मिलेट्स को उगाने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है. तो ये भी एक बात है. और राइस की तरह राइस का हम सभी को पता है 1 किलो राइस को उगाने में ऑलमोस्ट 2000 लीटर्स ऑफ वाटर लग जाता है. दैट इज very much having an impact on the environment and also leading to water scarcity. I think that thing we can tackle through millets and also pulses, similar kind of a crop. Apart from that, government को infrastructure development में काम करना चाहिए, such as cold storage facilities, warehouses, all these things can be done. So हमारा कहीं ना कहीं जो food insecurity है वो और बढ़ेगा. जो ऑलरेडी डेवलप्ड फ्रेमवर्क है सच एज पीडीएस का और जो बफर स्टॉक है उसको और अच्छे से काम करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, बट द थिंग इज वी हैव सीन द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोविड. वी हैव सीन थ्रू व्हाट कंडीशंस दे वर गोइंग थ्रू एंड दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो उसको भी इम्पॉर्टेंट हमें डील करना पड़ेगा. Apart from that, government can also promote the sustainable agriculture method such as crop rotation, drip irrigation. These things kind of increase the productivity, right? Methods like mixed cropping, ये सब यूपीएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सुहास पालशिकर इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उन्होंने बोला कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अप्रूव करना चाहिए. बिकॉज अभी जब GM मस्टर्ड अप्रूव हुआ तो बहुत प्रोटेस्ट बढ़ गया था, वो एक अलग इशू है, हम कभी इसको बाद में बात करेंगे. सो आई थिंक द कंक्लूडिंग लाइन शुड बी, वी ऑल नो कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इट हैज शोन द वर्ल्ड की हाउ वी कैन बिकम सेल्फ sufficient. Now the bigger problem is how we can provide the nutritional security to our population. That is the major challenge which we have to tackle. And I think through these methods, definitely we can do something about it, and we can provide good amount of food, the nutritious food to our population. That is the thing. The next topic which we are going to discuss today is, I think, really important from the perspective of international relations. There was this article in the Hindu newspaper that connecting India's East with Indo-Pacific. So, इस article में बात करा गया है कि what is the importance of India's Northeast region for the rule-based order which India want in the Indo-Pacific. इंडो पैसिफिक क्या है उसको पहले हम समझते हैं. वी ऑल नो कि इंडो पैसिफिक का जो कंस्ट्रक्ट है अभी आजकल के जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है. वी नो दैट कि after 2008 financial crisis, China का जो belligerent rise है, it is claiming the entire South China Sea. It has having a lot of border conflict with its neighboring states such as India, such as Philippines. बहुत सारे कंट्री का प्रॉब्लम हो रहा है. तो चाइना का जो कहीं ना कहीं इमरजेंस है वो प्रॉब्लमेटिक है उसके आसपास की कंट्रीज के लिए. इस कंटेक्स्ट में USA एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने एक कंस्ट्रक्ट बनाया इंडो पैसिफिक, जो क्या है बेसिकली इट्स एन एरिया फ्रॉम दी वेस्टर्न साइड ऑफ द अमेरिका टू टिल दी इंडियन ओशन. और वहाँ से वहाँ तक जो
है दे टॉकिंग अबाउट दिस इंडो पैसिफिक एंड चाइना इसको नहीं मानते हैं. चाइना ऑलवेज सेज दिस इज एशिया पैसिफिक, बट ये उनका कंस्ट्रक्ट है और वो बोलते हैं कि वी वांट अ रूल बेस्ड ऑर्डर. मतलब चाइना को जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको मानना पड़ेगा, इसलिए ये बनाया गया. सो चाइना के राइस की वजह से प्रॉब्लम अभी चल रहा है एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग. अब इस कंटेक्स्ट में इंडिया का वी ऑल नो कि अभी चाइना के वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद चाइना. सो इन ऑर्डर टू टैकल चाइना इट इज सेइंग कि इंडिया के लिए तो इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट को यूज कर सकता है टू इम्प्रूव द रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक. हाउ कैन वी डू दैट? इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इन विच वी वांट टू डेवलप अ बेटर रिलेशन विद द आसियान कंट्रीज और उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के कहीं ना कहीं वी कैन इंक्रीज आवर इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके थोड़े सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे. सबसे पहला चीज़ जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस. बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द गेटवेज फॉर द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. और हमें पता है कि जो आसियान रीजन है वो मैन्युफैक्चरिंग हब था आफ्टर 90s. इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया अगर उनसे बेटर ट्रेड रिलेशन बनाएगा सो वी कैन गेट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो द मार्केट सो दैट हमारे लोगों को फायदा होगा. उसके अलावा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट रीजन का. रिसोर्स रिच रीजन है, कल्चरल रिच रीजन है ना. और वहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है इफ़ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिले. एंड ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ऑल दिस थिंग्स आर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करता है और एंड देयर आर अदर ट्रिब्यूटरीज एज वेल जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट रीजन का. उसके अलावा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हम वी कैन नॉट इग्नोर द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडिया ऑलवेज टॉक्स अबाउट टू वर्क समथिंग इन इट्स बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. इट वॉन्ट्स टू इंश्योर प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. सो उस कंटेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन आवर कंट्री. सो दीज आर ऑल द थिंग्स बट चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में. सो चैलेंजेस की अगर हम बात करें सो सबसे पहला चैलेंज है द आइसोलेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया. हमें पता है इट इज़ ओनली कनेक्टेड बाय 22 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत पतला है. इसलिए नॉर्थ ईस्ट का कहीं ना कहीं जो मेनलैंड इंडिया है उसे जो कनेक्ट है वो टूट गया है जिसकी वजह से और मतलब हमेशा से ऐसा था और जिस वजह से जो डेवलपमेंट है उसका द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिवली लेस देन दी मेनलैंड इंडिया. और इसीलिए वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट इतना नहीं किया और वहाँ कंपैरेटिवली लेस डेवलपमेंट है अगर आप देखोगे जाकर. सो दिस इज द थिंग. अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं कमी हुआ है व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड, वाटरवेज, रेलवेज थोड़ा कम है वहाँ पे. एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल, इंस्टीट्यूशंस एंड दी हेल्थ फैसिलिटीज कहीं ना कहीं हमें उस पर भी काम करना है. ये सारे चैलेंजेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमें करना है. ये सब तो इकोनॉमिक थिंग हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज विच आर ऑल्सो देयर सच एज टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स इज ऑल्सो देयर विच always make concerning situation for the central government. Also insurgency and political conflicts जो हम देखते हैं some of these regions of the northeast such as Nagaland they want to create a separate nation. वो भी कहीं ना कहीं हमें problem create करता है. So these are all the threats which are there which is posed by the northeast region. अब बात ये है हमें करना क्या चाहिए. तो करना क्या चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इकोनॉमिकली हमें वहाँ के पोटेंशियल को यूज़ करना है. वी ऑल नो गवर्नमेंट को वहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स करने ही पड़ेंगे. वी हैव टू इंसेंटिवाइज देयर लोकल एंटरप्रेन्योर. ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन कम एंड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन. उसके अलावा हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर एरिया है और वहाँ पे टूरिज्म इफ़ यू आर एबल टू डेवलप तो कहीं ना कहीं वहाँ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा. तो ये सब चीज़ें भी हमें करना चाहिए. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बोथ सोशल एंड फिजिकल इज़ नीड ऑफ द आवर. अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बात करें सो मेनी स्कॉलर्स दे हैव हाईलाइटेड कि इंडिया को जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए एंड उसको करना चाहिए एक्ट ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. मतलब नॉर्थ ईस्ट के थ्रू हम एक्ट ईस्ट करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट के थ्रू कॉपरेशन बढ़ाएंगे आसियान कंट्री से तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा. दैट कैन ब्रिंग दी प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन. आई होप आप सभी को ये दो टॉपिक समझ में आए होंगे एंड इफ़ यू लाइक द टॉपिक्स यू कैन डेफिनेटली गिव अ थम्स अप टू द वीडियो. यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो. मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाऊंगा आप सभी के लिए. And I think this can really help you for your UPSC mains answer writing. UPSC के mains आंसर राइटिंग ऐसे ही होता है. So yeah.